स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन और स्पेस वेव प्रोपोगेशन. टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस स्काई वेव प्रोपोगेशन. इनफैक्ट जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर 4 लेयर्स होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आयोनोस्फियर. ये जो लेयर का सीक्वेंस मैंने बताया ये अर्थ के सरफेस से शुरू होता है और अर्थ के सरफेस से आगे दूर जब हम चलते जाएंगे स्काई की तरफ तो ये आपके चेंज होते रहेंगे. सबसे पहले जो अर्थ के सरफेस के साथ टच करता है दैट इज़ योर ट्रोपोस्फियर. तो ट्रोपोस्फियर के अंदर जैसा हमने बात करी थी कि जो आपका प्रोपोगेशन इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, वो ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं. स्काई वेव प्रोपोगेशन जो होता है ये बेसिकली जो सिग्नल होता है वो सीधा रिसीवर की तरफ हम ट्रांसमिट नहीं करते. हम जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसको फोकस करते हैं ऊपर स्काई की तरफ. तो जो फाइनल लेयर जो मैं बता रहा था आपको कि जो फाइनल लेयर आपकी होती है एटमॉस्फेयर की, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो आपकी आयोनोस्फेयर होती है. तो आयोनोस्फेयर की तरफ आपका सिग्नल जाता है और उसके अंदर से रिफ्रैक्ट होके या रिफ्लेक्ट होके सिग्नल वापस आपका अर्थ की तरफ आता है. और रिफ्लेक्ट होके जब वो वापस अर्थ पे आता है तो जहाँ पे वो आता है वहाँ पे हम रिसीवर या रिसीविंग एंटीना लगाते हैं, वहाँ पे आपका सिग्नल रिसीव करा जाता है. सो दिस टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड स्काई वेव प्रोपोगेशन. आप जैसा स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने लिखा भी हुआ है, आपने पढ़ा होगा सभी ने. In this type of propagation, wave is directed towards the sky, not towards the receiver, and reflected or reflected back by the ionosphere towards the earth. So this is your sky wave propagation. For a very large distance of communication, we use sky wave propagation. As you can see in the figure also, this is the figure of sky wave propagation. Here is a transmitting antenna on your left hand side and receiving antenna on your right hand side. You can see it is also showing ground wave propagation also. You can see red arrow. So the distance traveled by the ground wave propagation, using ground wave propagation by the signal, is very less in comparison of sky wave propagation. The distance may be larger in ground wave propagation, but you will have to use a very high power. And I have told you the disadvantage of ground wave propagation. Its bandwidth is very low. So in sky wave propagation you can see here is a blue line going towards ionosphere. A shaded portion above you can see is your ionosphere. The signal from transmitting antenna is moving towards ionosphere and then reflecting back. You can see the blue line and the signal is reaching to the receiver. So this is the diagram of sky wave propagation. Here are some examples which shows what will be the distance between transmitter and receiver. In this figure you can see you can see you are transmitting the signal from same point and it is reaching at different points. Here are a number of lines of different colors: green, orange, red and blue. So the first signal, the signal shown in red color, it simply passes the ionosphere and left the earth and its atmosphere permanently. It never reflects back. While in signal 2, which is in orange color, you can see when we changed the angle, we are transmitting from the same point but the angle of incidence is changed
angle of incidence is reduced. So if we reduce the angle of incidence, the signal reflects back. You can see in orange color, the ray or the signal 2, you can see in orange color, it reflects back. When we reduce the angle more, the angle is lower than as it was in case 2. You can see in green color. So the distance, or you can say the skip distance here, just see the distance between transmitter and the point where the signal reaches after reflection at the earth. In case of ray 3, you can see the distance is reduced. When we change the angle, the distance between transmitting point and receiving point is reduced. Okay, let us try one more thing. We reduced the angle of incidence further. This is your case 4, the blue line you can see. We have seen that the angle is reduced, but the distance between transmitter and the point where signal reaches is increased. When we reduced the angle first time, the signal came back to the earth. When we reduced it further, the distance reduced, but when we reduce the angle more, the distance increases. What it means? If we reduce the angle beyond a particular value, the distance will be increased. So there will be a minimum distance. एक कम से कम डिस्टेंस ऐसा होगा जिसके ऊपर आपका सिग्नल आएगा एक पर्टिकुलर एंगल पे. अगर आप उससे ज़्यादा एंगल को कम करते हो तो आपका डिस्टेंस वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो इसके अंदर हमने 4 चीज़ें देखी कि अगर जो आपका एंगल है वो एक ज़रूरत से, एक रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा होता है तो आपका सिग्नल वापस नहीं आएगा. आपका सिग्नल पास कर जाएगा आयनोस्फीयर को और बाहर निकल जाएगा. जब आपका एंगल एक पर्टिकुलर लेवल पे आएगा तो आपका सिग्नल रिफ्लेक्ट होके वापस तो आना स्टार्ट होएगा. लेकिन आप उस एंगल को कम करते रहेंगे तो जो डिस्टेंस है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में वो कम होता जाएगा. लेकिन वो एक लिमिट तक होता है. अगर आपने उससे ज़्यादा उस एंगल को कम करा, जो पर्टिकुलर लिमिट है उससे ज़्यादा अगर आपने उस एंगल को कम करा तो जो आपका डिस्टेंस है वो वापस से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये जो डिस्टेंस था, जो मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है. हमने ये जो ऊपर एग्जांपल लिए, ये वाले जो चारों एग्जांपल हमने लिए, इन चारों एग्जांपल्स के अंदर फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी है हमने. एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमने सिर्फ एंगल्स को चेंज करा है. तो एक ही फ्रीक्वेंसी पे जब हम अलग अलग एंगल पे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है वो चेंज होता है और एक ऐसी वैल्यू आएगी जो मिनिमम होगी, उससे कम डिस्टेंस दोनों के बीच में नहीं होता है. तो वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं स्किप डिस्टेंस. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये हर एग्ज़ाम में लगभग पूछी जाती है 2 नंबर में कि व्हाट इज स्किप डिस्टेंस. तो स्किप डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड द पॉइंट वेयर वेव कम्स बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फ्रॉम द ionosphere. So skip distance depends on 2 things. First is your frequency, the frequency of the signal or the wave you are transmitting, and second thing, critical frequency of the ionosphere. अभी हम बात करेंगे कि critical frequency of ionosphere क्या होती है. एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है MUF,
जनरली इसको शॉर्ट में ही पूछा जाता है, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ एम यू एफ, या सिंपली एक्सपैंड एम यू एफ। कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज़ एम यू एफ। तो मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो यूज़ करी जाती है, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो यूज़ करी जा सकती है दो पॉइंट्स के बीच में। एक रिसीवर है, एक जगह ट्रांसमीटर है। तो मैंने आपको बताया कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है जिससे सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आता है, वो किस पे डिपेंड करता है? एक तो आपके एंगल पे डिपेंड करता है और एक आपकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उन दो पॉइंट्स के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए यूज़ करी जा सके बाय यूजिंग स्काई वेव प्रोपोगेशन। स्काई वेव प्रोपोगेशन का यूज़ करके किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यूज़ करी जा सकती है, उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये मैंने आपको कहा कि ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो होता है उसमें पावर पे डिपेंड करता है कि भाई ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कितना डिस्टेंस हो सकता है। कुछ हद तक ये आपका स्पेस वेव प्रोपोगेशन में भी डिपेंड करता है। लेकिन स्काई वेव प्रोपोगेशन में पावर का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपने पावर को बढ़ा दिया तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और जो आपकी आयनोस्फीयर की लेयर है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है, वो पावर पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड पावर है वो तो आपको देनी ही पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने पावर बढ़ा दी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। पावर बढ़ाने से डिस्टेंस कभी भी नहीं बढ़ेगा। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड द डेंसिटी ऑफ आयनोस्फीयर। इसके बाद आता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये जो स्काई वेव प्रोपोगेशन है इसके अंदर ये 3-4 डेफिनेशंस है। स्किप डिस्टेंस है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन लगभग आते हैं पेपर में, किसी की फुल फॉर्म पूछ लेता है, किसी की डेफिनेशन पूछ लेता है। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होती है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ पे भी आपका ट्रांसमीटर है, आप वहाँ पे खड़े हैं, तो वहाँ से बिल्कुल वर्टिकल इंसिडेंस पे। वर्टिकल इंसिडेंस का मतलब है कि आपका एंटीना जो है वो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ फोकस कर रहा है, कोई एंगल नहीं बना रहा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो अर्थ के सरफेस के साथ। तो जब एंटीना बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, इट मीन्स वर्टिकल इंसिडेंस जब करता है, तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो वर्टिकल इंसिडेंस पर रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, the highest frequency which can be reflected back from ionosphere at vertical incidence is called critical frequency। तो ये आपकी होती है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। अब वर्चुअल हाइट क्या होती है? वर्चुअल हाइट देखिए, जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब हमने सिग्नल को ट्रांसमिट करा तो हम कह रहे हैं कि सिग्नल हमारा जाता है आयनोस्फीयर के अंदर, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके आता है या रिफ्रैक्ट होके आता है और वो वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो कुछ और डिस्टेंस होता है, और एक्चुअल में अगर सीधी हमारी वेव जाती और एक पर्टिकुलर पॉइंट से मुड़ के वापस आती तो वो जो डिस्टेंस होता वो कुछ अलग होता। तो वर्चुअल हाइट क्या कह रहा है? द अपेरेंट हाइट ऑफ लेयर इन द आयनोस्फीयर determined from the time required for a radio pulse to travel to the layer and return, assuming that the pulse propagates at the speed of light। कि भाई वर्चुअल हाइट वो अपेरेंट हाइट है, एक्चुअल नहीं है, अपेरेंट हाइट है कि भाई सिग्नल ने एक्चुअल में कितना टाइम लिया। भाई हम सभी ने 7वीं 8वीं क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी जो होती है, हम मान के चलते हैं कि भाई जो हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है। तो सिग्नल किस टाइम पे चला, किस टाइम पे पहुंचा, सिंपली टाइम हमारे पास आ गया, वेलोसिटी हमारे पास है, तो डिस्टेंस। ठीक है, तो वर्चुअल हाइट वो हाइट है, वो अपेरेंट हाइट है जो हम इस कैलकुलेशन से निकालेंगे, जो आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम के फॉर्मूले से निकलेगी।
तो एक्चुअल में सिग्नल जो होता है वो कुछ और पाथ ट्रेवल करता है, और जो हम टाइम की कैलकुलेशन से निकालेंगे वो कुछ अलग होगा। तो वो जो हाइट है उसको हम कहते हैं वर्चुअल हाइट। द अपेरेंट हाइट ऑफ ए लेयर in the ionosphere determined from the time required for a radio pulse to travel to the layer and return, assuming that the pulse propagates at speed of light। तो ये आपके पास स्काई वेव प्रोपोगेशन दिखा रखा है। इसके अंदर स्काई वेव प्रोपोगेशन दो तरीके से हो सकता है, एक सिंगल होप होता है, एक मल्टीपल होप होता है। तो राइट साइड वाला जो डायग्राम जो आपको पहले भी मैंने दिखाया था वो आपका सिंगल होप का एग्जांपल है, और जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो वो मल्टीपल होप है। ठीक है, जब ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि वो सिंगल होप में नहीं पहुंचता, इन दैट केस वी यूज़ मल्टीपल होप ट्रांसमिशन। सो ये कह भी रहा है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इज सो लार्ज दैट कैन नॉट बी अचीव्ड यूजिंग सिंगल होप, in that case we use multiple hop skywave propagation। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है लेयर्स ऑफ द आयोनोस्फीयर। पहले तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स की हमने बात करी, मैंने बताया कि भी मोटे मोटे तौर पे जो बेसिक लेयर्स जो हम कहते हैं उनके फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली जो लेयर हम मान के चलते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो चार होती हैं: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आयोनोस्फियर। तो जो लास्ट वाली एयर होती है आयोनोस्फियर, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम सभी को पता है भाई अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाते हैं एयर का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होता चला जाता है, डेंसिटी जो है वो कम होती चली जाती है। तो डेंसिटी कम होती चली जाती है तो सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है उसके अंदर आयंस होते हैं। ठीक है, फ्री आयंस होते हैं आपके, आयंस आप सभी को पता ही है। तो जो आयोनाइज्ड लेयर या जो आयोनोस्फियर होती है उसके चार पार्ट होते हैं बेसिकली, डी, ई और F1 और F2, या कई बार हम तीन कह देते हैं कि डी, ई और F। तो F के फिर हम दो पार्ट कर देते हैं, F1 और F2। तो कुल मिला के चार लेयर्स, कुछ में आपको तीन भी लिखी हुई मिल सकती हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन F जो होता है उसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर लेते हैं, F1 और F2। अच्छा, ये जो आयनोस्फीयर होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो टेम्परेचर या यूँ कहें कि सनलाइट डिपेंडेंट होती है। दिन में उसकी डेंसिटी कुछ और होती है, रात को उसकी डेंसिटी कुछ और होती है। ठीक है, वो आप सभी को पता ही है कि सनलाइट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी वजह से डेंसिटी में वेरिएशंस आते हैं। ऑल द फोर लेयर्स आर प्रेजेंट ड्यूरिंग डे टाइम। दिन में चारों की चारों लेयर होती हैं, और रात में जो मैं आपको बता रहा था कि भाई तीसरी जो लेयर होती है एफ़, जिसको हम F1 और F2 दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो आपकी दोनों मिक्सअप हो जाती है, मर्ज हो जाती है और एक ही लेयर बन जाती है। और डी एंड ई लेयर डिसअपियर एट नाइट। डी और ई जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं, और F1 और F2 जो होती हैं वो दोनों मर्ज हो जाती हैं। दीज लेयर्स हैव ए लोअर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, उनमें क्या होता है, लोअर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होती है। ठीक है, आयंस जो होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं। आफ्टर द सनसेट्स द इंटेंसिटी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिक्रीजेज। सनसेट हो जाएगा तो क्या हो जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। अल्ट्रावायलेट रे कहाँ से निकलती हैं, सन से निकलती हैं। सन ही नहीं है उस टाइम पे, रात के टाइम पे, तो अल्ट्रावायलेट रे क्या होती है, बहुत कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो recombination of the ionized particles occur and the lower ionization layer will dissolve। आयंस क्या होते हैं भाई, कोई किन्हीं पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, ठीक है, तो वो ब्रेक होने से बनते हैं। ठीक है, वो सब आपने केमिस्ट्री वगैरह में एग्जांपल पढ़े होंगे सोडियम क्लोराइड वगैरह के। तो Na+Cl-, तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, और जब वो अल्ट्रावायलेट रेज नहीं रहती तो वो आपस से रिकम्बाइन हो जाते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस इकट्ठे हो जाते हैं और न्यूट्रलाइज्ड हो जाते हैं। तो जो आपकी
लोअर आयोनाइज्ड लेयर्स होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं रात के टाइम पे। जस्ट बिफोर सनराइज आयोनाइजेशन इज़ एट इट्स लोवेस्ट पॉइंट। जो सुबह का सा टाइम होता है 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास का, उसमें जो आयोनाइजेशन होती है वो मिनिमम होती है, क्योंकि जैसे ही शाम को सनसेट होता है तो रिकम्बिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, होता रहता है होता रहता है, और जब तक सन नहीं निकलेगा तब तक वो होता रहता है। जैसे जैसे सन राइज होने लगता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगता है, वो वापस से ब्रेक होने लगते हैं, जो रिकम्बिनेशन हुए थे वो वापस से ब्रेक होने लगते हैं और आयनाइजेशन वापस से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी लेयर्स थी आयनोस्फीयर की। तो हम लेयर्स की बात कर रहे थे। डी लेयर के बारे में, द डी लेयर विच इज़ प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे ओनली। भाई मैंने बताया कि ये डी और ई लेयर जो होती हैं वो आपकी डे टाइम पे होती है, नाइट में वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। एफ़ जो होती है F1 और F2 डे में होती हैं, और रात को वो दोनों मिक्सअप होके एक ही लेयर बन जाती है एफ। तो डी लेयर जो होती है वो लीस्ट आयोनाइजेशन होता है उसके अंदर, और उसका जो इफ़ेक्ट होता है, जो हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन है, रेडियो प्रोपोगेशन जो है, उस पर लीस्ट इफेक्ट होता है। डी लेयर की वजह से उस पर लीस्ट इफेक्ट होता है। हाउएवर इट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्स रेडियो वेव ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये क्या कर लेती हैं, 10 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। कौन सी लेयर की बात कर रहा हूँ, डी लेयर की बात कर रहा हूँ। 10 मेगाहर्ट्ज़ अप टू 10 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। The ionization is proportional to the angle of elevation of the sun and is the greatest at noon। जाहिर सी बात है, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो दोपहर में सबसे ज़्यादा आती है, उस पर्टिकुलर जो एरिया है, जो पर्टिकुलर लेयर का एरिया है उसके अंदर। तो किस पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ एलिवेशन पे डिपेंड करती है कि भाई सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ रही है वो किस एंगल से पड़ रही है। तो डेफिनेटली दोपहर के अंदर मैक्सिमम उस पर पड़ रही हैं, तो नून के अंदर जो इम्पैक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, ग्रेटेस्ट होता है। ई लेयर की हम बात करते हैं। कैनेली हेविसाइड लेयर इज़ द लेयर ऑफ आयोनाइज्ड गैस अक्यूरिंग बिटवीन रफली 90 to 150 किलोमीटर। तो ये लेयर बता रखी है कि भाई रफली इसका जो गैप है वो 90 to 150 किलोमीटर होता है। ये क्या करती है, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव होती है उनको रिफ्लेक्ट करती है। तो मीडियम फ्रीक्वेंसी मीन्स अप टू 20 मेगाहर्ट्ज़। एंड बिकॉज ऑफ दिस रिफ्लेक्शन रेडियो वेव्स कैन बी प्रोपोगेटेड बियॉन्ड द होरिजन। ठीक है, तो स्काई वेव प्रोपोगेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई रेडियो होराइजन होता है, ऑप्टिकल होराइजन होता है। तो ये ऑप्टिकल होराइजन की बात कर रहा है कि जो वेव जो होती है वो आपकी होराइजन से भी आगे भेजी जा सकती है यूजिंग ई लेयर। प्रोपोगेशन इज़ अफेक्टेड बाय टाइम ऑफ डे। वो नाइट और डे वाला कंसेप्ट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि उसका इम्पैक्ट रहता ही है। तो स्काई वेव प्रोपोगेशन जिस भी कम्युनिकेशन में यूज़ करा जाता है, अगर वो 24 आवर यूज़ करा जाता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करी जाती है। दिन में किसी और फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करता है, रात को किसी और फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट करता है। दैट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। ड्यूरिंग द डे टाइम द सोलर विंड प्रेसेस द लेयर क्लोजर टू द अर्थ। जो सोलर विंड होती है, सूरज से निकलने वाली जो विंड होती है, उससे क्या होता है, वो प्रेशर करती है। तो ये जो लेयर होती है ये थोड़ी प्रेस हो जाती है अर्थ के सरफेस की तरफ, क्लोजर टू द अर्थ, देयर बाय लिमिटिंग हाउ फार इट कैन रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स ऑन द नाइट साइड ऑफ द अर्थ। द सोलर विंड ड्रैग्स द आइनोस्फीयर फर्दर अवे। तो दिन के टाइम में ये वाली जो लेयर होती है ये थोड़ी अर्थ की तरफ होती है, और सभी को पता है कि भाई अर्थ के ऊपर एक साइड में दिन होगा, एक साइड में रात होगी। तो जिस तरफ रात होगी उस तरफ वो लेयर थोड़ी एक्सपेंड होके और अर्थ के सरफेस से दूर की तरफ मूव करती है, जिस तरफ रात होती है उधर नज़दीक की तरफ मूव करती है।
The extent of the effect is further influenced by the season and the amount of sunspot activities. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो इफ़ेक्ट होते हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं? सनलाइट पे, डे और नाइट पे तो डिपेंड करते ही करते हैं। फर्दर सीज़न कौन सा है भाई, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उन पे भी डिपेंड करता है। दिस इज़ द लोवेस्ट यूजफुल आयोनाइज्ड लेयर एंड नॉर्मली डिजोल्व्स आफ्टर सनसेट। तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया कि भाई डी और ई जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है। तो सनसेट के बाद तो ये डिज़ोल्व हो ही जाती हैं और बहुत कम यूज़ करी जाती हैं। इसके बाद आता है एफ लेयर, जो लास्ट लेयर जिसकी हम बात कर रहे थे कि भाई F1 और F2 दो पार्ट्स होते हैं। तो पहला पॉइंट, द एफ रीजन कंटेन्स आयोनाइज्ड गैसेस एट ए हाइट ऑफ अराउंड 150 to 800 किलोमीटर। तो इसके अंदर क्या होती है, आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं और रेंज इसने बता दी 150 से लेके 800 किलोमीटर अबव सी लेवल। समुद्र से जो जनरली कोई भी हाइट जब हम मेज़र करते हैं तो सी लेवल से मेज़र करते हैं। इट हैज़ द हाइएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एनीवेयर इन द एटमॉस्फेयर। पूरे एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर से लेके आयनोस्फेयर तक जो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और आयंस की, वो इस लेयर के अंदर होती है। ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन सोलर रेडिएशन इज मच हायर देन ड्यूरिंग द नाइट टाइम द एफ लेयर स्प्लिट्स इनटू टू सब लेयर। तो दिन में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, F1 और F2, और रात में मर्ज होके वापस एक ही लेयर बन जाती है F1 जो लेयर होती है वो आपकी 200 से लेके 500 किलोमीटर तक होती है। आफ्टर सनसेट दीज टू लेयर्स मर्ज अगेन इनटू ए सिंगल एफ लेयर। क्लियर? तो ये था हमारा स्काई वेव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए इतना ही। स्काई वेव प्रोपोगेशन हमने डिस्कस करा। तो वैसे तो स्लाइड में सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने आपको बता भी दिया है। फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूज़न है किसी तरह की तो आप मेरे को पूछ सकते हो। वॉइस कॉल आप कभी भी कर लेना या व्हाट्सएप कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे।